Through the evening today, we have got you the maximum coverage, the maximum vantage points, and a 360-degree view of Prime Minister Narendra Modi's grand road show from Varanasi. These are live visuals that we are getting of the last leg of the Prime Minister's massive road show in his own constituency, Varanasi. Well, the BJP says the Prime Minister is going in for the kill. On the other hand, the opposition is claiming that the Prime Minister doing multiple road shows, rallies, sabhas, staying the night in Banaras continuously for now 3 days. He will be seen in his own constituency are signs of nervousness on the part of the BJP. Well, this debate will be settled only on March 11th. These are the live visuals that you are getting from Varanasi. Prime Minister Modi's 5-kilometer long road show was supposed to take about 2 to 3 hours. Already it started about 2.5 hours late at 4:30. It's been 3 hours that the Prime Minister has been on the road. Let me now just get you this report filed by my colleague Mosmi Singh. In the meanwhile, when the Prime Minister crossed Hakulganj, where Mosmi in fact was positioned. The Prime Minister Narendra Modi at his best, trying to woo the Janta of Banaras. The entire air has been rendered inaudible with Modi, Modi chants. The entire street is flooded with people. BJP workers are completely ecstatic and euphoric with their leader, the man in charge, the man in command. Right there, they stop Pracharak, waving aggressively at people, not missing a chance to look at anybody and establish a direct connection. It is yet to be seen whether the euphoria can actually translate into words for the BJP in Banaras. With camera person Kripal Singh, this is Mosmi Singh in Banaras for India Today. All right, so that light that you see on the face of the Prime Minister ensuring that in the darkness that has ensued in Banaras now, the Prime Minister is visible. A lot of enthusiasm there on the part of his supporters. The Prime Minister as well, waving, smiling to his supporters, ensuring that his constituency, Varanasi, all the 8 seats fall in the bag of the BJP in the crucial elections. The last race on March 8th. The SPG flanking the Prime Minister there, a nightmare of sorts now, almost right at the end of this road show. The Prime Minister from there would be going to the BHU, where he'll be meeting about 2,000 prominent citizens, intellectuals of Varanasi. Earlier in the day, my colleague Brijesh Pandey, in fact, caught up with Prime Minister Narendra Modi's elder brother, who is also in Banaras, giving a boost to Prime Minister's campaign. Right now, I'm at Assi Ghat in Varanasi, and I'm joined exclusively by Prime Minister Narendra Modi's eldest brother, Som Bhai Modi. Som Bhai जी, आप यहाँ पिछले कुछ एक आध हफ्ते से गुजरात में हैं, वाराणसी में हैं. आपने क्या देखा और आप यहाँ क्या करने हैं? यहाँ पर मैंने देखा है कि लोगों में इलेक्शन का बड़ा उत्साह है, और उत्साह इसलिए दिखता है कि आज जो सरकार चल रही है, पिछले कई सालों से जिन लोगों का वहीवट है, उसकी वजह से लोग त्रस्त है और अब आशा बनाए बैठे हुए हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सरकार बदलेगी तो कुछ अच्छे काम होंगे। और आप आमतौर पे प्रधानमंत्री की फैमिली पॉलिटिक्स से एकदम दूर रहती, क्या ये पहला आपका मतलब आप पहली बार प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं और प्रचार में शरीक हो रहे हैं कि इससे पहले भी आपने किया? ये मेरा पॉलिटिकल पार्ट है नहीं, और वो विधायक के तौर पर इलेक्शन लड़ते थे, तब भी मैं उनका कार्यक्षेत्र देखता था इलेक्शन के टाइम पर, और ऐसे ही यहाँ भी आना हुआ है घूमने के लिए। बाकी पॉलिटिकल से डायरेक्ट अटैचमेंट मेरा कुछ है नहीं। तो क्या बनारस में क्या देखा आपने, जितने समय से आप यहाँ बनारस में हैं, क्या माहौल क्या है यहाँ का? मैंने कहा ना, बनारस का माहौल बढ़िया है। इलेक्शन के तौर पर लोगों में बहुत जागृति है, सरकार को बदलने के लिए लोग लालायत हैं,
लोगों ने तय कर रखा है कि इस दफे सरकार बदलेगी। आपके अलावा क्या परिवार का कोई और अन्य सदस्य भी आया है यहाँ पे? जी नहीं, आप अकेले। पिछले 3 प्रधानमंत्री जी की कल यहाँ एक रोड शो हुई और एक रैली भी हुई, उसके अलावा अगले 2 दिन तक भी 2 दिन प्रधानमंत्री की 2 और रैलियां हैं। विपक्ष का ये कहना है कि शायद भाजपा उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, इसी वजह से प्रधानमंत्री की 3 बैक टू बैक रैली हो रही। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राष्ट्र का नेता है प्रधानमंत्री, तो लोगों के मन में उनका भाव होता है कि कभी वो हमसे मिले, तो व्यक्तिगत रूप से मिलना तो संभव होता नहीं है, तो इसी तरह से उनका एक दूसरे को मिलने का हो जाता है, तो उससे प्रधानमंत्री को भी आनंद होता है, लोगों को भी आनंद होता है। तो ये अपने लोगों से मिलने की एक प्रक्रिया है। It's been a day of hectic political colors in Varanasi. The Prime Minister's road show there on the street. Let me now also bring you a report that was filed by my colleague Brijesh Pandey. Again, he was speaking to Kalraj Mishra, senior leader of the BJP. Remember, a massive number of the cabinet ministers and also other senior BJP leaders are camping in Varanasi. So the capital may be Lucknow, but the political capital, it seems as of now, is Varanasi. These are the visuals of the stage where the Prime Minister would be in some time, and he will be speaking to the people. Let's get to this report filed by my colleague Brijesh Pandey. ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो कल रोड शो था और उसके बाद रैली और लगातार 3 दिन 3 रोड शो और 3 रैलियां, विपक्ष का कहना है कि ये भाजपा के दावों की असली हकीकत बयां करती है। भाजपा घबराई हुई है, इसीलिए मजबूरी में उन्हें प्रधानमंत्री को उतारना पड़ा और ये करना पड़ा। देखिए, जिन्होंने ये कार्यक्रम तय किया है, किस मंशा से किया, किस लिए किया, ये तो वो लोग जाने, क्योंकि वो जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैंने जो इसका अर्थ लगाया है, वो यही अर्थ लगाया है कि प्रधानमंत्री जी सही माने में एक सामान्य परिवार के सामान्य कार्यकर्ताओं में से रह करके इतने ऊंचे पद पर आए, इसलिए उनको लगा कि जब सामान्य सांसद अपने क्षेत्र में पूरे तौर पर जाता है जनता के बीच में, तो मैं क्यों न जाऊं, भले ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हूं। और इसलिए इस मानसिकता से प्रेरित होकर अपने अंदर के उन सामान्य सांसदों के साथ एसोसिएट करते हुए उन्होंने ये कार्य किया है, ऐसा मैंने अनुभव किया। और जिस तरीके से जा रहे हैं, कर रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, वो भी इसी बात को प्रकट करता है। इसलिए इसको मैं रोड शो तो नहीं कहता हूं, ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 5 विधानसभाओं में जा करके जनता से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है, कर रहे हैं। इसको रोड शो कहकर मैं समझता हूं दूसरे तरीके से चित्रित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं, ये महसूस करके ये प्रवास कर रहे हैं। इसलिए इसको अन्यथा तरीके से लोगों को नहीं पेश करना चाहिए। ये सांसद के नाते अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं, ताकि बाकी के सांसदों से जब पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में बोलते हैं कि अपने सभी क्षेत्र में जाना चाहिए, तो उनको भी लगे कि हाँ भाई, हमने अपने संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में जाकर काम किया है। All right, as the Prime Minister is just getting ready to reach Banaras Hindu University and speak to the intellectuals and the prominent citizens of the city of his constituency, let's also bring you this interview of Keshav Prasad Maurya that was done by Managing Editor Rahul Kamal. Remember Keshav Prasad Maurya, the current state BJP chief. Also, many see him as the main contender for the Chief Minister's post if the BJP wins this crucial election. बीजेपी हलकों में चर्चा गर्म है कि अगर पार्टी की बहुमत से सरकार आती है तो अगले मुख्यमंत्री होंगे पार्टी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। इस वक्त वो हमारे साथ इस नाव पर सवार हैं। मौर्य साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। हम लोग इस वक्त गंगा में एक नाव पे सवारी कर रहे हैं और यहीं से मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस इंटरव्यू की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 के चुनाव से पहले वाराणसी आए थे, उन्होंने
वायदा किया था कि गंगा को मैं एकदम साफ कर दूंगा। अभी भी देखिए गंगा का पानी मैला है, काला है। कहाँ गया ये वादा? देखिए, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस दिन से आई है, माँ गंगा की अविरल और निर्मल धारा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक मिले, केंद्र सरकार ने लगातार प्रयास किया। एक बड़ा बजट भी इसके लिए आवंटित करने का काम किया। सर, आउटकम कहाँ है? यहाँ पे दिखना चाहिए ना कि पानी साफ हो। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बैठी है, श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई वाली, उस सरकार ने गंगा मैया के काम में बाधा डालने का काम किया। लिखित वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री आपकी है, उमा भारती मिनिस्टर है, नमामि गंगा आपका प्रोजेक्ट है, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा? कोई भी इम्प्लीमेंट की एजेंसी जो है स्टेट की है। हम पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप एनओसी नहीं दोगे स्टेट से कि हम घाटों का निर्माण कर सके, गंगा मैया का जल अविरल और निर्मल बन सके। तो जब तक प्रदेश सरकार नहीं चाहती तब तक कोई। कल हम लोग शो कर रहे थे, वाराणसी के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब पीएम बनने के लिए आए थे, यहाँ पे एमपी बनने के लिए आए, तब तो आपने नहीं कहा, आपने कहा कि मुझे तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, हुआ तो नहीं। ये कहना तकनीकी कारण से अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो गंगा मैया के काम में बाधा डाल रहे हैं। इसे गंगा मैया के भक्त इनको उखाड़ करके 2017 के ही चुनाव में फेंकने जा रहे हैं। एयरपोर्ट से शहर तक की 12 किलोमीटर की जो सड़क है, उसको आप लोग 2.5 साल से, लोग यहाँ के लोकल लोग जो बता रहे हैं, बता रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहे हैं कि सड़क बन जाए 2.5 साल से। जनाब, अब तक आप वो सड़क नहीं बना पाए जो आपको बनानी थी। जो हमको बनाना था वो कितना तेजी से काम चल रहा है। बीच में इन्होंने, इनके कुछ पार्टी के लोग थे जो लैंड एक्वायर की गई थी, उस लैंड में मुकदमेबाजी शुरू करवाई। किस प्रकार से सेंट्रल के लोगों ने मेहनत करके उसको ठीक कराने का काम किया है। विकास के मार्ग में राहुल जी सबसे बड़े बाधक अखिलेश यादव जी हैं, उनकी सरकार है। वो नहीं चाहते हैं कि यूपी का विकास हो। वो सोच रहे थे कि अगर यूपी का विकास 2.5 साल 3 साल में मोदी जी की सरकार में ज्यादा हो गया केंद्रीय परियोजनाओं के आधार पर, तो उनकी बहुत बुरी पराजय हो जाएगी। इस डर से डर करके, जिस व्यक्ति के पास विचारधारा के आधार पर लड़ने का साहस नहीं है, विकास के कामों को रोक करके वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बनारस की जनता भी जानती है, पढ़ा लिखा भी जानता है, अनपढ़ भी जानता है कि मोदी जी काम कराना चाहते, लेकिन अखिलेश यादव जी काम नहीं होने देना चाहते। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत अखिलेश ने अपनी एक छवि बनाई, काम बोलता है, डेवलपमेंट की छवि बनाई। अगर वो मोदी जी हैं तो अखिलेश भी कह रहे हैं मैं भी अपने काम के दम पे लोगों का जा रहा हूँ। तो आप जो कह रहे हैं कि विकास विरोधी छवि है, उनकी विकास विरोधी छवि। देखिए, अगर वो उनका काम बोलता तो मथुरा कांड, जवाहर बाग कांड के लिए सीबीआई जांच का आदेश उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट को नहीं देना पड़ता। अगर उनका काम बोलता तो सर्वोच्च न्यायालय को उस पीड़ित महिला के साथ जो गैंग रेप की घटना हुई उसका मुकदमा लिखने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय को नहीं देना होता। अगर इनका काम बोलता तो आप किसी गांव के अंदर जाइए, सड़क के जो गड्ढे में है कि गड्ढा सड़क में है, कुछ पता नहीं चलता, ये स्थिति नहीं होती। निश्चित तौर से यह कह सकते हैं कि इनके कारनामे बोलते हैं, इनका पाप बोलता है, इनका अत्याचार बोलता है, इनका अनाचार बोलता है, गुंडों के द्वारा थानों को चलाया जाना बोलता है, गरीब आदमी का बहता हुआ आंसू बोलता है, किसान का मुआवजा का पैसा आया वो नहीं बांटे। That is Keshav Prasad Maurya in conversation with Rahul Kamal earlier in the day, and that is Keshav Prasad Maurya now live at the place where Prime Minister Narendra Modi will be reaching in just a short while. We'll bring you the Prime Minister's speech as well. These are live visuals we are getting from the Banaras Hindu University, where the Prime Minister in Varanasi has in fact reached after culminating a massive road show. More than 3.5 hours he has been on the road, meeting people, waving to them, smiling to them, and the Prime Minister now is reaching to address his rally. He is at the Kashi Vidyapeeth University, I beg your pardon, and that's the Prime Minister there sitting where he is going to address the gathering. So the Prime Minister, this is the massive welcome that the Prime Minister has received in his own constituency, flanked by senior BJP leaders. You can see Keshav Prasad Maurya, the state BJP president, there along with other senior BJP leaders, and okay, so the Prime Minister there meeting people, and the BJP state president Keshav Prasad Maurya is on the mic as of now. चाहते हैं, गुंडागर्दी नहीं चाहते, जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी
आपकी सरकार में जो अत्याचार हुआ, जो अनाचार हुआ, जो माताओं बहनों के लिए सुरक्षा वाला प्रदेश ये बना, और छोड़िए किसी अपराधी की, आपके मंत्रिमंडल का ही, आपके कैबिनेट का एक साथी, आपने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में पीड़ितों की सुनवाई अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं होती है। एक पीड़ित महिला को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आप कहते हो कि अगर कोई किसी को समस्या हो तो 15 मिनट के अंदर डायल 100 के माध्यम से पुलिस पहुंचती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के 15 दिन बाद भी पीड़ित महिला का मुकदमा लिखा जा चुका है, लेकिन आज तक आपके अपराधी मंत्री को आपकी पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। मैं आज यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आने वाली 8 तारीख को जो 6 चरण Keshav Prasad Maurya, they are hitting out at the Samajwadi Party government in Uttar Pradesh, invoking Gayatri Prajapati. This is one issue that the BJP is rubbing it in at the Gathbandhan, the Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi, Samajwadi Party, Congress Gathbandhan on the back foot as far as this issue is concerned. They're touting it as the norm as far as the Akhilesh Yadav government is concerned. But the battle now has shifted to Varanasi, the penultimate day for the campaigning there in the constituency of the Prime Minister. Remember, he is the Member of Parliament from Varanasi, and the Prime Minister there sitting. He is going to address this rally very soon, but a lot of questions also being asked by the opposition as far as the continuous campaign blitzkrieg that we see by the Prime Minister in his own constituency. He, in fact, he took out a road show yesterday, addressed 2 rallies yesterday, now is back into the city, a massive road show today, and then he's going to address this rally. After that, there is going to be a meeting with the senior BJP functionaries, so it's not all as easy as possibly this road show will make you believe. Yesterday there was a massive road show by the Samajwadi Party, Congress combined as well. Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Dimple Yadav, all on that Rath, 12-kilometer long, that took hours to wrap up. And now the Prime Minister ensuring that tomorrow, when the campaign ends at 5 p.m, post that the people of Banaras, the people those who will be voting, the voters who will be voting in the last phase of election, only remember one spectacle, and that spectacle is being provided by the man that you see on your screen as of now, the Prime Minister of this country, Narendra Modi. He is going to be in the city of Temple, Kashi. He will be there tomorrow as well. These are the pictures we are getting you. On one side, or the left-hand side of your screen, is the Kashi Vidya Peeth, where the Prime Minister is stated to speak in just a short while. On the other side is the visual from his road show.